السلام علیکم طلبہ، میں عبدالحکیم صدیقی مددگار معلم معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی برمودا۔ تدریس شروع کرنے سے پہلے بچوں آپ کو ایک چند ہدایات دینا ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ موبائل کا استعمال صرف وقت ضرورت کریں اور موبائل اور آپ کی آنکھوں کا فاصلہ کم سے کم 2 فٹ ہونا چاہیے اور ہیڈ فون کا استعمال لازمی کریں۔ آج ہم ہمارے 10ویں جماعت کا پہلا علم ہندسہ کا سبق متشابہت دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، متشابہت مطلب مشابہ، شباہت والا۔ جیسے کہ ہم لوگ بچے اپنے والدین کے ساتھ جب جاتے ہیں تو ان کے دوست سہیلیاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی کتنا ماں کی شباہت ہے، کتنی باپ کی شباہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو شباہت ہوتی ہے، لیکن آپ پورے کے پورے اپنے ماں باپ کے متماثل ہوتے ہیں کیا؟ ایک جیسے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، لمبائی چوڑائی میں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن نقشہ یہ ایک جیسا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مشابہ۔ اب ویسے ہی علم ہندسہ میں کوئی نئی چیز نہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، علم ہندسہ کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے۔ دیکھیے جیسے ہم الجبرا میں ضابطے یاد رکھتے ہیں، ضابطے یاد رکھتے تو ہم سوالات آسانی سے حل کرتے ہیں۔ توسیع ضابطے ہیں ہمارے پاس، اے جمع بی خاص کی دوسری، اے منفی بی خاص کی دوسری، اے کی دوسری منفی بی کی دوسری، ان ضابطوں کا استعمال کر کے ہم نے سوالات حل کیے۔ اسی طرح سے علم ہندسہ میں خصوصیات کہنے ہیں تو ہم کو خصوصیات یاد رکھنے پڑیں گے، اور جیسا چین ہوتی ہے نا، چین ایک کڑی ٹوٹ گئی تو باقی پورے کڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، چین پوری ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے علم ہندسہ بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو پہلے خصوصیات یاد رکھنے پڑیں گے، پھر ان پہ سے ہم مسائل حل کریں گے، وہ مسائل بھی بعد میں خصوصیات بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، علم ہندسہ بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو چلیے بچوں ہم شروع کرتے ہیں متشابہت۔ اب یہ متشابہت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے کم ضلع والی شکل کون سی ہے؟ صحیح، مثلث۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف 3 ضلع ہیں، مستطیل میں 4 ہے، مخمس میں 5 ہے نا؟ تو اسی طرح سے اب ہم 2 مثلث، متشابہت میں موازنہ ہوتا ہے۔ اب موازنہ کس میں کریں گے؟ 2 ایک جیسی چیزوں میں کریں گے ہم، جیسا کہ انسان اور گدھے کا موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو انسان کا انسان کے ساتھ، جانور کا جانور کے ساتھ، ہے نا، ایک جیسے اسپیسیز۔ اسی طرح سے ہم 2 مثلثوں کا آپس میں موازنہ کر کے دیکھیں گے وہ کس قدر مشابہ ہے، کتنی چیزیں اندر مشابہ۔ تو دیکھیے جیسا کہ میرے پاس یہ ایک مثلث ہے، میں نے اس کا نام رکھا اے بی اور سی۔ دوسرا مثلث ہے، اس کا نام رکھا ہوں پی کیو آر۔ آپ غور کر رہے ہوں گے، ایک مثلث میں نے بڑا بنایا اور ایک مثلث جان بوجھ کر چھوٹا بنایا۔ یہی بتانا ہے آپ کو کہ مشابہت میں جسامت کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اب ہم جانتے ہیں ایک مثلث کا قاعدہ ہوتا ہے، ارتفاع ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی ایک ارتفاع ہے اور ایک قاعدہ ہے۔ بی سی قاعدہ ہے تو اے بی ارتفاع، کیو آر قاعدہ ہے تو ارتفاع پی ایس۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ 2 مثلث کے رقبوں کے ضابطے، مثلث کے رقبے کا ضابطہ ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع۔ چونکہ ہم یہ دونوں مثلثوں کا موازنہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ان کی موازنہ نیچے تناسب میں لکھیں گے۔ تو دیکھیے ایریا آف مثلث اے بی سی، اسی طرح سے دوسرا مثلث ایریا آف مثلث پی کیو آر مساوی ہے، ضابطہ وہی 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع۔ اب دیکھیے مثلث اے بی سی کا قاعدہ ہے بی سی اور ارتفاع ہے اے ڈی بٹے ادھر والے مثلث کا 1/2 ضرب قاعدہ کیو آر ضرب ارتفاع پی ایس۔ صحیح ہے؟ اب ہم نے دونوں میں غور کریں تو ہم کو پتا چلا کہ ایک جیسی چیز کیا ہے، 1/2 1/2، تو یہ 1/2 کٹ گیا، 1/2 کٹ گیا تو ہمارے پاس بچا گیا ایریا آف مثلث اے بی سی بٹے ایریا آف مثلث پی کیو آر مساوی ہے بی سی
ज़रब AD, QR ज़रब PS, ये है रेजिंग। लेकिन अब हमको इसको लिखना पड़ेगा क्या में, उर्दू में, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के, तो इसलिए आप इसको, ये रेजिंग है एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR मसावी है BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। तो अब इसको उर्दू में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से दो मुसल्लस है, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इनके कायदे और मुताल्लिका इर्तिफा, मुताल्लिका मतलब इस कायदे से ताल्लुक रखने वाला इर्तिफा और इस कायदे से रखने वाला ताल्लुक रखने वाला इर्तिफा, मुताल्लिका इर्तिफा के हासिले ज़रब की निस्बत के मसाइल। आप निस्बत के लिए तनासुब लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किताब में निस्बत है इसलिए मैं किताब का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए खुसूसियत नंबर 1, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इनके कायदे और मुताल्लिका इर्तिफाओं की निस्बत के मसावी होते हैं। ये हो गई पहली खुसूसियत, और आपको याद होना चाहिए, ये खुसूसियत आपको याद होनी चाहिए। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इनके कायदे और मुताल्लिका इर्तिफाओं के हासिले ज़रब, इर्तिफाओं के हासिले ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। यह खुसूसियत हो गई। अब दूसरी खुसूसियत देखिए, ये दो मुसल्लस बन गए हमारे पास, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है BCD, ABC BCD। अब इन दो मुसल्लसों के बारे में हम कंपेयर करेंगे, मुवाज़ना करेंगे, इनके रकबों का मुवाज़ना करते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस BCD, देखो BCD। अब वही ज़ाब्ता 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, इसका कायदा BC है ऊपर वाले मुसल्लस का, ज़रब इर्तिफा AB। उसी तरह से नीचे वाला जो मुसल्लस है उसका भी कायदा क्या है, BC ही है, क्योंकि मुश्तरिक है दोनों में, और इर्तिफा है C। अब इन दोनों का हमने मुवाज़ना किया तो हमको पता चला कि 1/2 दोनों में एक जैसा है और BC एक जैसा है। अब ये बचा क्या, देखो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस BCD मसावी है AB बटे C। ये कई में है मैथमेटिक्स में। अब हमको कई में लिखना है, इसको उर्दू में लिखना है। मसावी कायदे के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, मसावी कायदे के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी इर्तिफाओं की निस्बत के मसाइल। कितना आसान है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए शुरू में आप याद कीजिए, आपको बहुत आसान रहेगा। हमको इल्म इंसाफ मुश्किल इसीलिए जाता है कि हम क्या करते, खुसूसियात पर ध्यान ही नहीं देते। तो जरा खुसूसियात पे शुरू से ध्यान दो, इंशाअल्लाह ताला इल्म इंसाफ उतना आसान हो जाएगा। तो देखिए अब हम खुसूसियत नंबर 2 लिख रहे, क्या लिखेंगे, मसावी कायदे के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी इर्तिफाओं की
निस्बत के मसावी होते हैं। बहुत आसान, दो खुशियत हो गए। नंबर एक, दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत इनके कायदे और मुतालिका इत्तिफाकों के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। और दूसरी खुशियत, मसावी कायदे के मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत इनके नज़ीरी इत्तिफाकों की निस्बत के मसावी होते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो टेक स्नैपशॉट और फिर हम आगे बढ़ते। ए बी बी जिसका कायदा है बी डी और इत्तिफा है ए डी। और तीसरा मुसल्लस ए बी सी जिसका कायदा है डी सी और इत्तिफा है ए। अब हम इनमें मुवाज़ना करेंगे। देखते हैं एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी बी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी। इन दोनों मुसल्लसों का हम मुवाज़ना करेंगे। वही है ज़ाब्ता, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा बटे 1/2 ज़रब कायदा टीसी ज़रब इर्तिफा ए। अब यहाँ गौर से देखने पर पता चला हमको कि 1/2 एक जैसा है और दोनों में इर्तिफा एक जैसा है, मुश्तरक है ना। तो कर गए। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी बी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी सी मसावी है बी डी बटे डी सी। ये तो हो गया रियाजी में, लेकिन हमको कहना चाहिए उर्दू में, तो हम उर्दू में लिखते हैं। खुसूसियत नंबर 3, वहां मसावी कायदे लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे? मसावी इर्तिफा। मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदों की निस्बत के मसावी होते हैं। कितना आसान है। एक खुशिया समझ में आ गई तो हम तमाम खुशिया समझ सकते हैं। हमारी तीसरी खुशियत है। अब चौथी खुसूसियत, ए बी सी पी क्यू आर, ये डी और यहाँ एस। अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूं कि इसको क्या बोला मैंने, इसको H1 बोला, इर्तिफा 1। इर्तिफा को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसलिए उसको H बोला, और इसको H2 बोला, और इसको B1 बोला। ये फायदा है और ये फायदा है B2। लेकिन यहां ये बात है कि H1 मसावी है H2 के और B1 मसावी है B2 की। ये इर्तिफा के मसावी, ये कायदे के मसावी। तो इसमें ये बात हो गई कि दो मुसल्लस हैं जिनका कायदा भी मसावी है और इर्तिफा भी मसावी है। अभी तक हमने देखे या तो कायदा मसावी था या तो इर्तिफा मसावी था। अगर कायदा मसावी था तो इर्तिफा की निस्बत के मसावी था, और इर्तिफा मसावी था तो कायदे की निस्बत के मसावी था। अब देखते हैं अगर दोनों मसावी हो गए तो क्या होता है। देखिए फिर वही बात, मुसल्लस के रखने का ज़ाब्ता ए बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर मसावी है 1/2 ज़रब B1 ज़रब H1 बटे 1/2 ज़रब B2 ज़रब H2। चूंकि हम जानते हैं कि 1/2 मसावी है ही, और यहाँ बताया गया कि H1 और H2 दोनों मसावी है, और यहाँ बताया गया B1 B2 मसावी है, सभी मसावी है। तो क्या हो गया, ए बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर मसावी है 1/1। ये हमारी चौथी खुसरत है। लेकिन
ये बटे का क्या मिल जाता है इधर ज़रब में, ये बटे का इधर ज़रब में, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ मुसल्लस ABC मसावी है एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। तो ये खुसूसियत को हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, मसावी कायदे और इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे मसावी होते हैं, मसावी हो गए ना, है क्या नहीं। तो ये हमारी खुसूसियत नंबर कितनी है 4। तो खुसूसियत नंबर 4 मसावी कायदे और मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे मसावी होते हैं। 4 खुसूसियत अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये 2 मुतवाज़ी खुतूत है, इन 2 मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान हमने 2 मुसल्लस बनाए हैं। हम जानते हैं कि मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान फासला मसावी होता है, इसलिए हमने 2 मुसल्लस बनाए, क्योंकि इसका इर्तिफा भी h है और इसका इर्तिफा भी h है। अब देखिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR मसावी है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 जैसा था इर्तिफा एक जैसा था, कट हो गया बढ़ गया कायदा। तो अब हम इसकी खुसूसियत कैसे लिखेंगे, मालूम क्या कि मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बनने वाले मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी होते हैं। ये हमको है ना मुतनासिबत का बुनियादी मसले के लिए काम आएगा, जिसको थ्रेड्स लॉ भी बोलते हैं। हाँ, तो वो बात की बातें फिलहाल आपकी बातें जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा याद रखिए, एकदम मुज़बानी याद होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, 5-6 बातें याद रखना कोई मुश्किल नहीं। तो देखिए हमारी 5 खुसूसियत थी, अब 6ठी खुसूसियत, ये किताब में नहीं है लेकिन आपको मुतनासिबत के बुनियादी मसले के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, A B C और ये D, यहाँ 3 मुसल्लस बन रहे हैं। देखिए ABD ABC और ABC। अब मैं अगर इनका इर्तिफा बनाता हूं तो समझो ये इर्तिफा हुआ, ये इर्तिफा ABC मुसल्लस का भी है, ADB का भी है और ABC का है। कुछ बच्चों की तरह हुआ सर मुसल्लस ABC तो इधर है लेकिन इसका इर्तिफा यहाँ कैसा है, हमने 9th में इर्तिफा बनाए याद है, जिनसी अमल में ऐसा ही मुसल्लस था, उसका इर्तिफा बाहर बना था, तो वही वैसा ही है। तो देखिए अब हम ये मुसल्लसों का मुवाज़ना कर रहे हैं तो हमको पता चलता है कि देखो अगर मैं मुसल्लस लेता हूँ, मुसल्लस ABC लिया बटे एरिया ऑफ मुसल्लस, दोनों में से कोई भी मुसल्लस ले सकता, ABD लिया तो मसावी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, ABC का कायदा है BC और इर्तिफा है AE बटे 1/2 ज़रब, इसका इर्तिफा है BD ज़रब इर्तिफा है फिर से AE, यहाँ वही एक जैसा है 1/2 जैसा कट गया, ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABD मसावी है BC बटे BD। ये आ गई हमारी खुसूसियत नंबर 6। लेकिन आमतौर पे ये बनी हुई नहीं होती है, ये इर्तिफा बनेवा नहीं होता है। अब ऐसी सूरत में कैसा पहचानना, तो देखो जरा और से देखा मैंने, ये दोनों मुसल्लस है ABC और मुसल्लस ABD, दोनों और से देखा मैंने कि दोनों में मुश्तरक नुक्ते रास है। तो आप बोलिए, मैंने बोला मुश्तरक नुक्ते रास ए है, तो आप बोलिए सर दोनों में भी है, हम कैसा पहचाना मुश्तरक नुक्ते रास कौन से? बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये 2 नुकात मुश्तरक होने की वजह से हम कैसा पहचानना कि कौन से मुश्तरक नुक्ते रास है। तो याद रखिए मुश्तरक नुक्ते रास हम खत्ती नुकात के मुकाबिल की होती है। अब इस सवाल में देखिए आप BBC हम खत्ती है ना, इनके मुकाबिल की रास कौन सी है? ए, इसलिए वही रहेगी। कभी कभी क्या होता है शक्ल इस तरह से बनी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये PQR यहाँ ऐसा रहता है, इस तरह की शक्ल रहती है। अब सर आपने तो ऐसा सिखाया कि ऊपर वाली रहती, ऊपर वाली नहीं रहती। मैं आपको क्या बताया कि मुश्तरक नुक्ते रास वो होती है
जो हम खत्ती नुकात के मुखालिफ हो। अब देखो बी देखे हमने, बी मुश्तरक नुक्ते रास हो सकती क्या, वो हम खत्ती नुकात के मुखालिफ की रास है क्या, नहीं। हाँ ए देखो, हाँ ए इसलिए मुश्तरक नुक्ते रास है, तो हमारे पास फुर्सत क्या बनी, मान क्या, मुश्तरक नुक्ते रास। और एक खत को शामिल कर कर बनने वाले मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी होते, चाहे इर्तिफा दो या ना दो। जैसा मुतनासिब के बुनियादी मसले में आगे आने वाला है, इस वास्ते इस बात को मैं बहुत आपको गहराई से बता रहा हूँ। तो ये ना भी दी हुई हो तो भी हम पता कर सकते कि मुश्तरक नुक्ते रास कौन सा है। तो खुसूसियत नंबर 6 हमारी बनती है मुश्तरक नुक्ते रास और एक खत को शामिल करके बनने वाले मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी होते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक स्क्रीनशॉट और फिर हमारे